سید ظفر شاہ صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ذکر اللہ کرنے میں بھی قواعد و مخارج کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے؟ اگر مخارج کا خیال نہ رکھا جائے تو کیا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ذکر کریں گے اللہ پاک کا تو کئی حروف ایسے ہیں کہ اگر ان کا تبدیل کر دیں گے تو معنی بدل جاتے ہیں. جیسے احد، ہا، احد کو دو چشمی ہا پڑھیں گے، احد، تو معنی بالکل بدل جائیں گے. احد ایک، اور احد یہ غالباً فتنہ، شعلہ، آگ کی چنگاری، اس طرح کے اس کے معنی بنتے ہیں. تو یوں جو اس کے درست حروف ہیں وہ اگرچہ تجوید کے قواعد جو ہیں وہ اپنی جگہ پر یہاں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ہے کہ انشاءاللہ، اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تجوید کے مطابق کہے انشاءاللہ، اس طرح تو مشکل ہو جائے نا. تو کم از کم ہے کہ شین تو بولے، انسا تو نہ بولے. ہماری خاص کر ممن اور گجراتی برادری جو ہے نا اس میں بڑی کمزور ہوتی ہے، وہ انسا بولیں گے. اچھا، پھر اللہ، حمزہ کو لام سے ملائیں گے نہیں. یہ تو خیر، یہ تو ہر برادری میں شاید ملے گا. انشاءاللہ، یہ تو انشاءاللہ مد بھی کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ تو بولے. اچھا، ابھی اس کو جلدی بول دے انشاءاللہ، شین والے انشاءاللہ، انشاءاللہ آ رہا ہوں، انشاءاللہ آؤں گا. واٹ از انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تو نہیں ہے، انشاءاللہ. الحمدللہ میں بڑے بڑوں کو نوٹ کیے ہیں کہ بیچارے مطلب نہیں بولتے. الحمدللہ بولنا آئے گا، یہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ پھر جب جلدی ہوتے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ اس طرح بولتے ہیں. تو یہ مطلب اتنی تو تمیز ہو جائے کہ یہ مطلب کوئی درست لفظ کو تو بولا گیا ہے. الحمدللہ بولا تو یہ تو محمل ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اس طرح ماشاء اللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، اس کو بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذکر تھوڑی ہے. تو یہ عام ہے. مطلب تو اس کو کبھی کبھی تو میں نہیں باقاعدہ درجہ لگایا، کلاس لگائی ہے، مدنی مذاکر ان کو رٹوایا ہے کہ صحیح بولیں، لیکن یہ کہ بڑی عادت نکلتی آسانی سے ہے نہیں. اسی لیے وہ اللہ پاک میں نے بولنا شروع کیا ہے. اللہ تعالی بیسٹ. تعالی بولتے نہیں، اس کا کیا ہے؟ وہ تعالی تو یا تو معاذ اللہ تلا سمجھ میں آتا ہے یا تالا سمجھ میں آتا ہے، عین نہیں بولتے. تعالی، تعالی تو اللہ پاک آسان، اللہ کریم آسان. رجب المرجب بالکل صحیح ہے. رجب کے معنی تعظیم کے قابل، مرجب تعظیم کیا گیا. رجب جس کی تعظیم کی جائے، اور مرجب جس کی تعظیم کی گئی، رجب المرجب ہے نا. تو وہ مہینہ جو تعظیم کے لائق ہے اور اس کی تعظیم کی گئی، یہ معنی بنتے ہیں. لیکن رجب المرجب زبان پہ لائے گا کون؟ دعوت اسلامی کا مبلغ لائے گا. سامنے سننے والے تو مشکل ہے کہ بول سکے. ٹھیک ہے، ابھی ایک تو ربیع الاول کو بھی ربیع اول بولتے ہیں، ایک تعداد ہے، نہیں بیچارے بول پاتے. تو میں نے تو کچھ عرصے سے اور رجب المرجب بولنا چھوڑا اور رجب شریف بولنا شروع کیا. کہ ہم کو تو یہ عوام کو آسانی جہاں جہاں دے سکے نا وہ دینی ہے. یہ میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ ہر طبقہ. اچھا، پھر بھی ہمارے ہاں تو اب بھی اردو ہے اور کچھ نہ کچھ ماحول ہے. انہیں سمجھو کراچی میں یا پاکستان میں، اب باہر ملکوں میں نکلو تو یار فارن جاؤ جہاں انگلش بولی جاتی ہے. اب ہمارے میں انگلش بولی جاتی ہے، بچے 1 2 3 میں سمجھتے ہیں، باقی اس میں تھوڑی، باقی اس میں نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں اردو کے الفاظ، یہ اردو کے ہند سے، یعنی کہ ہند سے یہ میں بھی بھولیا، ہند سے اردو کے تعداد وغیرہ جو بنایا بیان کی جاتی ہے، 1 2 3، تو یہ بول رہے ہوتے ہیں. مدنی چل رہے یہی چل رہے ہوتے ہیں. 65 تو 3013 تو 1700، تو یہ تھوڑی نئی جنریشن سمجھتی ہے بھائی. یہ 2 میں نہیں سمجھے، 2 بولتے ہیں. کو پتا ہے آپ کا اپنا دارالمدینہ 2 سکھا رہا ہے. آج بھی
चुटकुला में सोच रहा था कि वो कुछ कारकर्दगी मदनी खबरें में दे रहे थे और ये अपनी जो मजलिस जो तर्जमा करते हैं मुख्तलिफ जबानों के, तो बड़ी मतलब मालूमात थी उसमें। ये कहा गया कि भाई अभी तक जो दरियाफ्त हुई है जबानें दुनिया की वो 6,500 हैं। ये मुझे जो याद रहा, मेरे लिए भी नई बात थी, अचंभे की बात थी न। 6,500 जबानें तो दुनिया में बोली जा रही हैं, ये जैसे दरियाफ्त हुई है। अब और कितनी है खुदा बेहतर जाने। तो अब दावत इस्लामी की जो मजलिस है वो फुला जबान और इसमें इतने, तो इसमें 29 का भी लफ्ज आया, या वह समझेगा कोई समझे बच्चा या नौजवान। अच्छा, फिर दीगर जो भी फिगर थे इंग्लिश में चाहे उन्होंने तर्जमा किया, फिगर उर्दू में बोल रहे थे, मैं समझ रहा था, लेकिन मुझे वो कि यार ये अवाम तो नहीं समझ रही होगी। ये सही बात पर बात निकली, गलत नहीं है, दुरुस्त है 100%, जो भी किया जा रहा सही है, लेकिन यार जहन ये सब बनाओ। मैं खुद मतलब पहले इंग्लिश से काफी दूर भागता था, मजा नहीं आता था उर्दू। अब रजब शरीफ मेरा बहुत पुराना लिखा हुआ रिसाला है, मैं पढ़ रहा था ना, मैं खुद मुतमईन नहीं था, मैंने यार क्या क्या लिख दिया है इसमें, ये क्या समझेंगे यार। रजब के जो माना और बता रहा था, कहीं कहीं तस्हील यानी आसान कर रहा था, लेकिन बहरहाल ये कि इसके लिए टाइम चाहिए आसान करने के लिए। तो ये कि अब बदकिस्मती से लोग नहीं समझ रहे, तो हमें तो उस जबान में समझाना है, इनके जबान में समझाना है कि ये दीन के करीब आए, वरना दीन के करीब नहीं आएंगे, ये दूर भागेंगे। मुझे एक जहन में बैठ गया वाकया कि किसी इस्लामी भाई ने मुझे बताया था कि किसी पढ़े लिखे कोई बैंक का मैनेजर था, या पता नहीं कोई बैंक का कोई था, पढ़ा लिखा आदमी था, उसको मेरा रिसाला बुरे खात्मे के असबाब वो पेश किया, उसने पढ़ा, तो उसने वो मुंह फट होगा ना, वो छूटते का कि तुम्हारे मौलाना होगी यार, ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये बुरे खात्मे, ये क्या होता है ना। उसको बेचारे को बुरे खात्मे के माना नहीं आते थे। इस तो अब मेरे ऊपर भी ये देखे आहिस्ता सा जहन बनता, तो अब मैंने बुरे खात्मे अच्छे खात्मे के वजह जब याद आ जाता है ना, तो बुरी मौत अच्छी मौत ये अल्फाज बोलता हूं, लेकिन याद भी नहीं रहता, 12 याद नहीं रहता, तो माना ये बनेंगे बुरा खात्मा यानी बुरी मौत, अच्छा खातिमा यानी अच्छी मौत। अब ये नहीं समझती अवाम, तो हम अपनी मतलब उर्दू दानी कब तक इन पर मुसल्लत करेंगे यार। इनके जबान में समझाओ ना, ताकि मस्जिद भरो तहरीक और मजबूत हो अपनी, और ये लोग मस्जिदों में आए, हमारे करीब आए, गुनाह छोड़ें। सर मकसद गुनाह छोड़ाना, नेकियों पर लगाना और अल्लाह पाक की बारगाह में पेश करना है। तो इसके लिए हमको वो लैंग्वेज, वो जबान और वो अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे जो शरीयत के दायरे में हो, शरीयत सेट कर रहा हो और ये करीब आए। वरना बाहर मुल्कों में मैं सही बोलता हूँ कि मतलब बहुत कुछ है, उर्दू नहीं है, बहुत कम रह गई है। लेकिन वहां जो पैदा हुए हैं दावत इस्लामी में, उर्दू नहीं जानते, बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे, उर्दू इतनी नहीं आती, समझ लेते हैं। ये हम लोगों के बयान सुन सुनकर आपको मिलेंगे, जैसे कि जब से मदनी चैनल सुनना शुरू किया, मुबल्लिगीन आए आपके बाहर से, तो अब ये समझ पड़ती है, लेकिन ये इतना नहीं समझ पड़ती, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते उर्दू। तो ये मदनी चैनल वालों को भी अब जो मैंने अर्ज कर दिया, चलो लाइव कर दिया, अल्लाह करे कोई सुन भी रहा हो जिम्मेदार, तो ये आइंदा के लिए मेहरबानी करके ये हर जगह आप हिंद से जो है ना जितने मुमकिन हो, या उर्दू बोलें साथ में इंग्लिश बोलें। मैं लफ्ज अव्वल बोलने से कतराता हूं, लफ्ज अव्वल मुझे यूं लगता है कि नहीं समझते होंगे। अव्वल, जिल्द अव्वल, वॉल्यूम फर्स्ट। अब मैं भी असल इंग्लिश जानता नहीं हूं, मैं भी रॉन्ग नंबर लगाता हूं। कल भी मैं पता नहीं फक और क्या क्या बोल रहा था, फक्स बोल रहा था, हाजी उबैदुल्लाह का पैगाम आएगा, फक्स नहीं है, फो गया। तो मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, बूढ़ा होकर छूट जाऊंगा। आप जवान है, आप लोगों को संभल के बोलना है, समझे। मुझ पर तो थोड़ा हंस लेंगे, चलो चक्कर उतर जाएगी, इनकी नींद चढ़ी थी तो उड़ जाएगी, चलो थोड़ा और बैठ लेते हैं यार, अच्छा लतीफ चुटकुला हो गया है। तो आसान आसान आसान। अच्छा, ये जो मेरे एक मुल्क के, ये मुफ्ती साहब को देख कर याद आया, एक मुल्क के इस्लामी भाई जो बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत काम होता है दावत इस्लामी का, मैं ये कह सकता हूँ।
उसके एक बहुत पुराने मुबल्लिग को पूछा, हमारा दारुल अहले सुन्नत के सवाल जवाब आपको समझ में आते हैं आप लोगों को, हिंदू वालों को? और नाम ले लिया मैंने, चला। तो उसने तो लटका करके बोला ना 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 नहीं समझते। तो वो करे क्या यार, इनको ये वास्ता पड़ा होगा, वो समझने वाले भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सब नहीं समझते होंगे, लेकिन बेचारे उर्दू बहुत वीक हो गई है। हालांकि वहाँ की कौमी जबानें जो है ना, वो मेरा ख्याल 15-17 जबानें हैं कौमी, जिनमें उर्दू भी शामिल है। तो जो मतलब मुख्तलिफ सूबे है ना, तो मुख्तलिफ सूबों में उर्दू कहीं ज्यादा बोली जा रही होगी, कहीं कम बोली जा रही होगी, कहीं कुछ तो कहीं इंग्लिश ज्यादा समझते हैं। वहाँ की अपनी मकामी जबान जो है वो ये समझते होते हैं। बाकी मतलब उर्दू के इनकी तहरीरें आती है, ये बोलते हैं तो यूं अपने को यूं थोड़ा लगेगा, ये लिखते भी ऐसी अटपटी उर्दू लिखते हैं बेचारे, नहीं आती बेचारों को। तो इसलिए मतलब ये बहुत सारा बोल गया मैं। सारे मुबल्लिगीन मेरे मदनी बेटे, मदनी चैनल वाले मदनी बेटे, ये मैं बोलता रहता हूँ यार, मदनी मुज़ाकरे में आया करो ना यार, ये इजारा करना पड़ेगा इसका भी सबसे, कि भाई इतनी देर बैठोगे तो ये दिया जाएगा, तो अल्लाह के लिए भी करना है अपने को। तो सब मदनी बेटे जिनको टेम होता है, मेहरबानी करके मदनी मुज़ाकरे में दावत इस्लामी बयान होती है, और मदनी मुज़ाकरे में वो बयान होता है जो शायद आप 100 किताबें भी फंगोलोगे और देखोगे तो मुश्किल है कि आप वहां तक पहुंच सको कि एकदम से आपको कोई ऐसा मदनी फूल मिल जाएगा कि जो मतलब किताबों से हो सकता है आपको ना मिल सके। ये तजर्बात भी, ये सारी तजर्बात की बातें कर रहा हूं मैं। निगरानी शुरा भी हम लोग दिल जलाते रहते हैं इन चीजों पर कि यार क्या करें, समझते नहीं है उर्दू, तो अब इनकी जबान है। तो इन्होंने खासकर इंग्लिश मजीद सीखी है, पढ़े लिखे मजीद सीखी भी है। मैं तो ऐसे ही हूँ जैसा हम आपके सामने हूँ, आप लोगों से सुन कर कोई अल्फाज बोल देता हूँ, इसमें भी रोग नंबर लगा देता हूँ। दावत इस्लामी में हुजूर मुबल्लिगीन के लिए हमने दरख्वास्त की हुई है अरबी, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश और आगे चाइनीज़, ये चंद ज़बानें वो हैं। इसके अलावा और भी ज़बानें हैं फ्रेंच कि इनको मतलब हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जिन ममालिक में रह रहे हैं मुबल्लिगीन, उनको दरख्वास्त की हुई है, स्पेशली जो हमारे इमाम इस्लामी भाई, जो मुबल्लिगीन इस्लामी भाई हैं, कि वो उस मुल्क की ज़बान के अंदर करें। आपने जो भी ऐसा भी एहसास और फीलिंग की बात हो, तो मैं दो बड़ी मतलब बस वो जो हंसने में एहतियात कीजिएगा जो मस्जिद में बैठे हुए हैं। मैं एक दो बातें बताता हूँ। ये इंग्लिश कंट्री की दो बातें हैं कि एक हमारे मुबल्लिगीन ने ही मुझे बताया जिनके साथ ये वाक़या हुआ, उनको उर्दू का उनका काफ़ी प्रॉब्लम है, तो उनके यहाँ के जो निगरान थे ना, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया किसी ज़िम्मेदार ने। तो उनको किसी ने बताया कि यार वो इस्तीफ़ा दे दिया, आप जाकर उनको समझाओ। इस्तीफा क्या होता है? अब मैं यही अर्ज़ करने जा रहा हूँ। तो वो इस्तीफ़ा दे दिया, तो वो उनके लिए नया लफ्ज़ था ना इस्तीफ़ा, तो वो उनके पास उनको मनाने के लिए गए कि वो जो आपने जो लतीफ़ा दिया है ना, तो वो नहीं लेना चाहिए था, आप वो लतीफ़ा वापस ले लो। अगर आपको लतीफ़ा रखना ही है और लतीफ़ा दे ही दिया है तो ठीक है, मगर लतीफ़ा वापस, अब वो इस्तीफ़ा को लतीफ़ा ही कर रहा है ना बेचारा। तो अब वो जो उससे मुझे सुनाया ना, तो फिर जो मेरी हालत थी ना, तो मैं वो तो तकन उतार दी। अब मैं एक और वाक़या सुनाता हूँ। अपनी निगरान काबीना की इस्तिलाह नहीं चली थी ना, निगरान काबीना, तो एक हमारे मुबल्लिग है, वो भी उसकी उर्दू का बहुत प्रॉब्लम है, ये अंग्रेज़ कंट्रीज़ के। तो उनको किसने कहा कि फ़लाँ निगरान काबीना आ रहे हैं, आप इनके लिए कोई बैनर बना लो, कोई वो बना दो। तो अच्छा, काबीना का लफ्ज़ उनके लिए नया था कि ये काबीना क्या होता है, तो वो काबीना को बोले नाबीना। तो इन्होंने लगा दिया कि हमारे फ़लाँ निगरान नाबीना ये तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अच्छा, मैं वो उनका तारुफ भी बता कि मैंने इनको बेचारे को निगरान नाबीना बना दिया था, तो काबीना का उन्होंने बनाया नाबीना, इस्तीफ़ा का बनाया उन्होंने लतीफ़ा। तो ये इसलिए मैं आपको ये जो भी हमारे रफ़ी भाई ने भी अभी सुना, तो जब हम दुनिया में जाते हैं ना, तो ये हमको खुद बताते हैं कि हम आपके दिए हुए लफ्ज़ों के साथ क्या सलूक करते हैं। तो ये हमारे लफ्ज़ों के साथ जो इन्होंने सलूक किया है ना, और जो बर्ताव जो इन्होंने किया है, ये इनको करना नहीं चाहिए था, मगर ये कर डाला इन्होंने जो करना चाहिए था। और हमारी कौम भी देकर आ रही है जो इनको देना चाहिए था। जो एहसास आप बयान फरमा रहे हैं ना, कि आप बैठते हैं, लुगत खोलते हैं, आसान लफ्ज़ निकालते हैं और आसान लफ्ज़ निकालते हैं, फिर गौर करते हैं। हर मुबल्लिग अगर अपने बयान से पहले अपने बयान को पढ़ ले और देख ले कि ये बयान जो मैं करने जा रहा हूँ, ये सुनने वालों को कि सिर्फ
ان کنٹریز کا پرابلم نہیں ہے حضور. خود میں جس ملک میں ہوں نا, ہمارے اپنے ملک میں 70% آبادی تو دیہاتی کہلاتی ہے, یعنی یہاں بھی تعلیم کا بڑا پرابلم ہے. اچھا جو زیادہ تعلیمی یافتہ ان کو بھی اردو کمزور ہے, تو یوں سب سوچ سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے یہ احساسات و جذبات اللہ پاک نے چاہا تو اگر ہمیں نصیب ہو گئے, اور جو آپ اس پہ کوشش کرتے ہیں اگر اس کا صدقہ نصیب ہو جائے نا, تو انشاءاللہ ہماری نیکی کی دعوت میں مزید اثر بھی پیدا ہوگا, اللہ نے چاہا تو عمل کا جذبہ بھی ملے گا.